Hi guys, welcome to Rodha. So a lot of students were demanding sir arithmetic accelerator के तो 6 एपिसोड हो चुके हैं. So why not go for algebra now? So I'm back on the YouTube channel with algebra accelerator now. Now arithmetic obviously is very important, but उसी के साथ साथ चलता है algebra. So arithmetic and algebra go hand in hand. So they are approximately have the same weightage in the exam nowadays. With arithmetic being slightly higher than algebra. So we'll see कि algebra की accelerator की क्यों ज़रूरत है आप सबको, है ना. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. It is very essential you focus on algebra equally as well, and arithmetic already we are doing. So I will introduce myself initially and then we'll start with the questions, and I will tell you कि algebra के बारे में थोड़ा सा idea दूंगा, कौन से chapters make algebra and why it is very important for your upcoming CAT exam. Okay, so a bit about myself. Hopefully you have seen the arithmetic accelerator series. मैं वो भी बता देता हूँ आपको. So we have done arithmetic के 6 episodes we have done, right? So arithmetic that you can find on our channel. Arithmetic accelerator 1, 2, 3, 4, 5, 6 has been done till now. So you can use them to practice some quality questions. Weekly practice करो questions को. So weekly you will get some videos. You can, even if you प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम योर सेक्शनल्स एंड मॉक्स, इवन 15 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं बढ़िया क्वालिटी के, दैट वुड बी वेरी फ्रूटफुल, है ना. और वीकली मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, है ना. सपोज यू हैव फिनिश विद अरिथमेटिक्स, यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट. नाउ हाउ विल यू प्रैक्टिस इट? ऑब्वियसली विल गेट द सेक्शनल टेस्ट, यू विल अपीयर फॉर मॉक्स, सो विल गेट सम क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एंड you can use this series to revise and practice. So that is the key word today. It is all about revision and practice. If you practice the questions well, revise अच्छे करोगे, quality आपको quality questions हैं, again and again I am telling you, so you'll be able to get through CAT very easily. It's not a very difficult exam, right? So we'll start with algebra accelerator. Make sure you watch arithmetic accelerator 1 to 6, all the parts, and we'll coming up with some more parts as well, right? So a bit about myself. So my name is obviously Sanchit, and I've been an educator for CAT and IPMAT for the over around 7 years now. I have qualified IIT JEE in 2012 and RMO as well in 2010, I would guess. And I've graduated from IIT Jodhpur. I've done a BTech in electrical engineering back in 2016, and then I worked for 2 years in corporate, and then I get into the teaching field because it was my passion to teach students. So I specialize in quant, LR, and DI, and my aim is to make sure every student is able to unlock his or her potential, right? Our potential is obviously higher than what we gauge generally. So if we can achieve that potential, we'll do justice to our abilities, right? So that is my aim. So without further ado, let's start with the session. I will give you the importance of algebra as well, है ना. So अभी तक आई गेस इंट्रो देने की इतनी जरूरत नहीं है अब, है ना. काफ़ी लोग आप मेरे को जान गए होंगे बिकॉज अरिथमेटिक का काफ़ी कुछ सीरीज मैंने कर लिया, राइट. एंड ओके, लेट्स मूव अहेड. सो एल्जेब्रा एक्सीलेटर में आप देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है एल्जेब्रा अरिथमेटिक के बाद? बिकॉज इसकी भी हाई वेटेज है ना. सो इट्स अ क्लियर पॉइंट, जिसकी वेटेज ज़्यादा होगी दैट इज इंपॉर्टेंट. सो अराउंड 30 to 40% ऑफ क्वांट सेक्शन टिपिकली एल्जेब्रा से आता है ना. सो अगर आप बोलोगे 2024 में 2023 में कैट में कितने क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 8 out of 22, है ना. सो दैट विल बी अराउंड 30 से 40% के बीच में ही आएगा, राइट. सो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन एक्सपेक्ट 7 to 8 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपके एल्जेब्रा से आएंगी. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस in which arithmetic and algebra get mixed as well, है ना. So you have to be very careful. Arithmetic बिना algebra के नहीं होता है, that is also very important. So they have been mixing arithmetic with algebra also very often, है ना. तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है. So they mix these two topics, मिक्स करके क्वेश्चंस बनाते हैं ना. So अब आप उसे अरिथमेटिक का बोलो, algebra का बोलो, मिक्स हो जाता है क्वेश्चन, राइट. It is very core to CAT logic. So it tests your ability to think abstractly and manipulate variables. इसमें क्या है, वेरिएबल्स, टेक्निक्स, सॉल्विंग टेक्निक्स, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना, अलग अलग तरीके से लिखना, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ कैट, है ना. एंड ऑब्वियसली एल्जेब्रा. इट इज़ वेरी फेवरेट फॉर ट्रैप्स, है ना. इसमें काफ़ी ट्रिक्स और ट्रैप्स होती है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. अगर आप उन ट्रैप्स को, ट्रिक्स को नहीं समझ पाते हो, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व एल्जेब्रा क्वेश्चंस इन कैट, है ना. ऑल्सो अरिथमेटिक इज क्वाइट ईजी फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. वाई? बिकॉज इसका बेस 10th क्लास में बन जाता है मोस्टली, है ना. क्लास 10th में इसका बेस बनता है. बट एल्जेब्रा यू हैव टू स्टडी राइट नाउ. आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे. देयर विल बी चैप्टर्स on quadratic equations, modulus you don't know before 10th class, right? You don't have a base on modulus. Inequalities का इतना अच्छा बेस नहीं होता है. So obviously it will separate the toppers, है ना. रैंक कैसे आएगी, परसेंटाइल ज़्यादा कैसे आएगी? So if you have to cross 99 percentile, you have to master algebra. So this is the key point कि आपको algebra तो मास्टर करना पड़ेगा. आप सिर्फ अरिथमेटिक के भरोसे
नहीं जा सकते, बिकॉज अरिथमेटिक के सपोज 9 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 5-6 क्वेश्चंस ही डुएबल हैं. सो विद 5-6 क्वेश्चंस यू कैन नॉट गेट 99 प्लस परसेंटाइल, राइट. 5 क्वेश्चंस में नहीं होगा अगर आप 5 अटेम्प्ट करोगे. सो यू विल हैव टू डू दोज अदर 5-6 क्वेश्चंस एज वेल जो एल्जेब्रा से आएंगे. सो दिस इज व्हाई एल्जेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ विच चैप्टर्स आते हैं एल्जेब्रा में? सर कौन से चैप्टर्स आते हैं? सो इट से इक्वेशंस, अगर आप बोलो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वट एवर यू वांट टू से, लीनियर/क्वाड्रेटिक इक्वेशंस is higher order equations. All of the equations part is a part of algebra. Then you have inequalities. इसमें काफ़ी सारी inequalities आप पढ़ते हो. मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के concepts they get more of a mix. Then you have indices and surds, all these concepts. You have logarithms, you have a concept of logs, you have concept of functions and graphs. All these are part of algebra, right? Now PNC also you can assume in algebra, but उसको generally हम modern maths में बोल देते हैं. So these are also one more chapter I missed, sequence and series. Let me write it here, sequence and series. You can say progressions, कुछ भी बोलो. So these are majorly 5-6 units which are very core to algebra. तो ये अच्छे से master करना है. So start with the session को start करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या हमें सीखने को मिलता है. So we'll practice some high quality questions. Need not be very difficult questions, है ना. क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत टफ क्वेश्चन हो रहा है, 2 पेज तक आप कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट उसमें बहुत डीप हो सकता है कि अच्छा हाँ ये वाला हमने सीखा है ना. तो दैट इज माई एम हियर, राइट. इट्स नॉट टू शोकेस सम वेरी टफ क्वेश्चंस, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द एम इज टू मास्टर अलजेब्रा, राइट. गो फॉर सम वेरी कोर कॉन्सेप्ट्स, है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है. नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. व्हाट दिस सेज इज some ratio is given to us, m upon n is equal to, and there is a chain there, है ना. Now it is very important कि m and n कोप्राइम है. तो आप बोलोगे सर कोप्राइम का क्या मतलब होता है? What is the meaning of कोप्राइम? कोप्राइम का मतलब होता है इनका HCF 1 हो, है ना. अब ये मत बोलना HCF का मीनिंग क्या होता है, राइट. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो. There should be nothing common other than 1, right, in two numbers. For example 5 and 6 are कोप्राइम क्योंकि उनका HCF 1 आएगा. Although 5 and 10 are not co-prime, उनका HCF 5 आएगा ना. तो ऐसे आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो. HCF I guess everybody understands. So now he is saying कि m minus n का मॉड्यूलस कितना आएगा ये आपको निकालना है ना. तो you have a look at this question यार. यहाँ 90 है या 91 है या 98 है. So there are a lot of terms here. We cannot solve it directly. So you have to assume something. You have to go for a clever way, right? There has to be a clever way out. Now what is that clever way out? I am teaching you, right? So देखो अगर आप इसको देखोगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4. आप बोलोगे सर x तो ही नहीं, x कहां से आ गया? एक बार 90 को रिप्लेस करते हैं x से ना. जस्ट रिप्लेस 90 बाय x. आर यू गाइस एबल टू सी दैट? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. दिस बीइंग रिटन. अगर आप 90 की जगह x कर दो, देखो ऐसे ना, जस्ट आई एम डूइंग इट, है ना. अगर 90 की जगह x करोगे तो दिस ओनली यू विल गेट. और ऑब्वियसली दिस इज द फॉर्मेट एवरीवेयर. अगर x की जगह आप 91 डालोगे तो ये आ जाएगा, 98 डालोगे तो ये आ जाएगा. सो ऑल दीज टर्म्स हैव अ पैटर्न. पैटर्न इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना जरूरी है. नाउ वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म. 5 को 4 और 1 में स्प्लिट कर लोगे, यहाँ पर 2 और 3 में स्प्लिट कर लोगे तो ऊपर क्या आएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 आई विल गेट, करेक्ट. और नीचे क्या आएगा? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. आई होप यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग. इसको 4x और x में कर लिया और इसको 2x और 3x में कर लिया क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे 6 करना है. सो दिस इज अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट कि हमने इसको ऐसे फैक्टराइज कर लिया ना. नाउ सो दिस इज द फॉर्मेट. नाउ x इज 90 हियर. आई कुड से दैट x इज 90 हियर. वेरी क्लियरली वी कैन सी इफ आई पुट 90 इन दिस आई विल गेट दिस टर्म. x इज 91 हियर. x इज 91 हियर. व्हाट अबाउट हियर? x will be 97 somewhere around here, and finally x is 98. Finally x has to be 98. So the sequence एक सीरीज है, एक है ना. ऑब्वियसली हम सारे टर्म्स नहीं लिखेंगे यार. सारे टर्म्स लिख के क्या हो जाएगा, राइट. यही काम थोड़ी करना है एग्जाम में कि एक एक करके टर्म्स वी आर राइटिंग एंड देन वी आर सीइंग कि अरे ये इससे कैंसिल हो रहा है ना. विल हैव टू लुक सम टर्म्स इन द बिगिनिंग एंड सम टर्म्स इन द एंड. दैट शुड बी द मोर स्मार्ट अप्रोच, है ना. सो 90 को इसमें डालते हैं ना. अब सोचना क्या है, देखो, है ना, पैटर्न देखना. आप सबसे पहले एक का जंप यहीं ले रहे हो, फिर नेक्स्ट नंबर, देन नेक्स्ट नंबर एंड देन नेक्स्ट नंबर, है ना. सो ये इस तरह का एक पैटर्न है, राइट. बहुत ही अच्छा पैटर्न है. तो x को 90 डालेंगे तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद 91, then I will write 92, then I will write 93, and then finally I will write 94. So this is the pattern that I got from x is equal to 90. So beautiful pattern, right? So similarly if I put 91, I have to jump one step क्योंकि x plus 1 से start हो रहा है ना. So 91 को x डालोगे तो you have to start with 92, then 93, then 94 and then at top 95, right? Similarly
So let me multiply them, dot dot dot, put 97, start with 98, then 99, then 100, then 101. It's beautiful. And then lastly I can put 98, so it will be 99, then 100, then 101, and finally 102. Bingo. So we have finished our sequence. Now all the terms would get cancelled, not all but mostly. So अब आप देखो किस किस को पार्टनर मिल रहा है. 92 को तो पार्टनर मिल चुका है, 93 दो बार आ रहा है, ये वाला तो कहीं कट जाएगा, ये रह जाएगा. 94 इज ऑल्सो गॉन, सो ऑल दीज विल बी गॉन. ये तो कहीं ना कहीं कट जाएंगे आगे, इधर इधर इनके पार्टनर्स मिल जाएंगे आपको. सो सिमिलरली आई कैन से यहाँ पर क्या कट रहा है यार, 99 इज गोइंग, येस, एंड 101 इज ऑल्सो गो, and everything else will also go there. 98 और 100 भी चला जाएगा, this will also go, right? So 102 और 100 अब दोबारा यहाँ पहले नहीं मिलेंगे, और 91 and 93 नहीं मिलेंगे. So what will be m by n? This is equal to m by n. तो 91 into 102 upon 93 into 100. ये अकेले रह गए, जो लोग रह गए सिंगल रह गए, ये लोग है ना, सिंगल आउट कर दिया इनको मैंने ना, बाकी सबको पार्टनर्स मिल गए, so they will cancel out, right? Now what I have to do? I have to cancel क्योंकि m upon n को प्राइम है ना, m और n. सो मुझे इसको जब तक कैंसिल करना है जब तक कुछ और कैंसिल नहीं होता है ना, दैट इज द एम हियर. सो वी हैव हाफ डन, द क्वेश्चन इज बीइंग हाफ फिनिश नाउ. सो अब हम इसको कैंसिल करते हैं यार, है ना. सो इसको कैंसिल करोगे तो आई थिंक 51 यू विल गेट, 50 विल गेट, 2 से कैंसिल कर दिया, और इसको अगर 3 से कैंसिल करोगे तो 17 आ जाएगा, और इधर 31 आ जाएगा ना. नाउ 91 इंटू 17, दिस यू कैन मल्टीप्लाई, ये कर लो नॉर्मली मल्टीप्लाई ना. लेट्स सी क्या अभी और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, राइट. 7 से जा रहा है ये, बट 13 से जा रहा है, बट देयर इज नथिंग टू कैंसिल नाउ. तो अब क्रोप्राइम ही आने वाला है प्रोडक्ट. So this is 7, this is 63, and this is 91 here. So we'll get 1547 at the top. So 1547 at the top I am getting, and bottom is 31 into 5 is 155, and there's 1 0. Now these two. अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है. आप बोलोगे सर कैसे पता, आप देख लो ना ऊपर और नीचे, nothing is being getting cancelled now, right? So these two are the numbers we are looking for, and we have to answer m minus n का मॉड्यूलस. ये आंसर होना चाहिए. तो m की वैल्यू आ रही है 1547. And what is n? 1550. Now we are very close to the answer. So this is modulus of minus 3. So we'll get our answer is 3. Now, if you tell me कि सर ये बहुत difficult question है क्या? No, this is not a difficult question. This is a very doable question. बहुत doable question है ये, है ना. But idea क्या important है? You should know, try to visualize these things, है ना. मैंने अरिथमेटिक में भी आपको हर वीडियो में बोला कि ट्राई टू विजुलाइज करे करो क्वेश्चन को, कि यार इतने सारे टर्म्स दे रखे, इज देयर सम आइडिया दैट आई कैन विजुलाइज एंड आई कैन प्लग इन दैट वैल्यू एंड आई कैन गेट एवरीथिंग कैंसिल्ड. सो दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली हैंडल्ड इन 2 मिनट्स, है ना. आराम से 2 मिनट में आप आराम से कर सकते हो. अगर ये सीक्वेंस बढ़ भी जाता, क्योंकि हर जगह पैटर्न सेम है, तो टर्म्स कैंसिल हो जाते. तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मैं कर सकता हूं अगर पैटर्न कहीं बन रहा होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये विजुलाइज करना, इस तरीके से आप इन्हें फैक्टराइज करके कैंसिल कर सकते हो. दिस द की आइडिया, दिस वाज द की आइडिया इन दिस क्वेश्चन, एंड देन ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सॉल्व होता गया और हम अपने फाइनल सॉल्यूशन की तरफ पहुंच गए. सो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. होपफुली यू हैव एंजॉयड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. नाउ अगर आप इसमें टॉपिक बोलोगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूज हो रहा है मोस्टली, एंड देयर इज अ बिट ऑफ नंबर्स एज वेल, कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं ना, एंड मॉड्यूलस भी है. सो एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स्ड, बट ओके, ग्रेट फॉर लर्निंग. लेट्स मूव अहेड. सो वेन एवर यू ट्राइंग दीज क्वेश्चंस, पहले ऐसा ट्राई करो कि यार एक बार आप खुद अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को. यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फर्स्ट, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन लुक फॉर द सॉल्यूशंस कि कैसे करा है. इफ यू हैव एनी गॉट एनी बेटर अप्रोच, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. और इन जनरल भी आपको कौन सा क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में आप उलझ गए, या किस में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट एज वेल, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों भी आपका फीडबैक जरूर कमेंट्स में शेयर करें, राइट. So let's move ahead to the next question for the day. आगे चलते हैं. So this is based on some surds and some under roots being given. A lot of under roots I would say. बहुत सारे under roots है. But ठीक है, हम घबराएंगे नहीं. We'll try to get it sorted somehow. So this is based on surds, indices and surds I would say. These are obviously a part of algebra, right? So let's try to solve this question. इसको कैसे करें आप, है ना? तो there has to be some technique to solve it, है ना? क्योंकि अब देखो एक अंडर रूट है, देन एक और अंडर रूट, एक और 3 अंडर रूट, इसमें 4 अंडर रूट है, इसमें भी 4 अंडर रूट. यू हैव टू कंबाइन टर्म्स. ऑप्शन देखो, ऑप्शंस आर वेरी वेरी लाइक बेसिक. सो बेसिकली द टेक्निक हैज टू बी कॉम्बिनेशन पे काम करना है ना, कंबाइन करना है टर्म्स को, कॉम्बिनेशन करना है. कौन से दो को कंबाइन करें, एंड देन इट शुड सिंप्लीफाई. ये सिंप्लीफाई होगा, दिस इज फॉर श्योर, ये सिंप्लीफाई होगा, है ना. अब सबसे पहले अपन इन दोनों पे फोकस करते हैं ना. आप बोलोगे सर इन पे क्यों कर रहे हो, इनका ऑर्डर और सब कुछ सेटअप एकदम सेम है, राइट. सो इफ आई से दिस इज माय ए, सपोज दिस आई से एज ए,
and this whole I say as b. So this will be a minus b, you can clearly see, right? So what is being written here? ऐसा कुछ लिख रखा है a plus b का अंडर रूट और a minus b का अंडर रूट. So you can multiply them, you will get a square minus b square का अंडर रूट. Yes, you can do that because we know a plus b into a minus b is a square minus b square. So I've assumed 2 as a. Try to visualize करो. a की 2 की जगह a सोचो, a लिखा हुआ है और इस पूरे की जगह b लिखा हुआ है ना. Try to visualize it like this है ना. इस पूरे की जगह सपोज b लिखा हुआ है और इस पूरे की जगह a लिखा है. So this is a plus b का रूट है ना. Similarly this is a minus b का रूट. बिल्कुल एक जैसा है सेटअप. So you can try to visualize this and obviously we know this identity, so we'll try to apply this identity now, है ना. कोशिश करते हैं इसको अप्लाई करने की एंड देखते हैं इससे हमें कुछ सक्सेस मिलता है नहीं मिलता है. लेट्स ट्राई फॉर इट, है ना. सो वी कैन डायरेक्टली राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब आप अगर 2 को स्क्वायर करोगे तो 4 ही आने वाला है. सो आई कैन राइट 4 हियर. a स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज 4 एंड व्हाट विल बी b स्क्वायर. सो ये अंडर रूट हट जाएगा, है ना. सो यू कैन रिमूव दिस अंडर रूट एंड यू कैन राइट द रेस्ट ऑफ द स्टफ एज इट इज. बाकी सब एज इट इज लिख दो, राइट. And there's obviously an under root being here. ये under root मैंने लगा दिया, right, लास्ट में. So this is sorted. So I have combined these two terms and I am feeling very very happy कि अच्छा लग रहा है मुझे. Now what I can do is 4 minus 2 will be 2. So I will get 2 minus and I will get 2 plus root 3 का under root. This term I will get. So now this is sorted. Now I can bring this here. इसको ले आते हैं हम, है ना. So अब कलर चेंज कर लेते हैं तो इसको अब इससे कंबाइन. So we'll try to combine these two now. We'll try to combine these two now. So this is 2 plus अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 ऐसा. अगेन आई कैन गो फॉर द सेम लॉजिक. अब आपको दिख रहा होगा हाँ सर अब तो फिर से कहने से दिस इज a दिस इज b. सो अगेन दिस इज a प्लस b का रूट. दिस इज अगेन a दिस इज माइनस b, राइट. दिस इज a माइनस b. सो अगेन आई कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. तो सेम कॉन्सेप्ट आई रिपीटेडली हैव टू अप्लाई एंड सिंप्लीफाई. इस तरह की सिंप्लीफिकेशन इज कोर ऑफ एल्जेब्रा. अगर आप बोलोगे ना एल्जेब्रा क्या है, एल्जेब्रा यही है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है, राइट. सो पिछले क्वेश्चन में विजुलाइज करा था एक्स स्क्वायर. अगर आपने स्प्लिट कर लिया, एक बार पैटर्न बना लिया, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, है ना. तो ट्रिक्स और ट्रैप्स इसमें बहुत होते हैं एल्जेब्रा में. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सो अगेन इफ आई डू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर से अपन अगर उसके लिए जाएं, सो a स्क्वायर अगेन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड b का स्क्वायर करोगे तो ये वाला अंडर रूट हट जाएगा. सो विल गेट 2 प्लस रूट 3 एंड देयर इज ऑटोमेटिकली एन अंडर रूट एट द टॉप, येलो. So this is again 2 minus root 3 का under root. This you will get. Now I can bring this here. अब इसको ले आते हैं ना, यही बचा है बस, है ना. So this is 2 plus root 3 ऐसा. So again I can go for the same concept, है ना. आप बोलोगे सर ये तो बार बार आप तो एक ही काम कर रहे हो ना. अब यही काम है, करे क्या, है ना. यही करना है, सिंप्लीफाई करना है, राइट. सो अगेन a एंड b की वैल्यू चेंज होती जा रही है पर कॉन्सेप्ट वही लगता जा रहा है ना. तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है. दिस वेरी वेरी गुड. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. So if you can just look at the terms and see कि अच्छा हाँ इसको ये मानते हैं, इसको भी मानते हैं और कंबाइन करते हैं, अरे ये सिंपल हो गया. देन इनको फिर इससे कंबाइन करा, फिर सिंपल हो गया. फिर इसको इससे कंबाइन करा, फिर सिंपल हो गया. दिस इज द की आइडिया, राइट. सो अगेन आई कैन से यार ये a है मेरा, ये b है. आई कैन से दैट, राइट. एंड सिमिलरली ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा. अगेन आई विल गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 2 का स्क्वायर इज 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3 एंड देयर इज एन अंडर रूट. अंडर रूट तो है ही, दिस अंडर रूट इज ऑलवेज देयर. सो आंसर विल बी रूट ऑफ 1, दैट विल बी 1. So that means A option answer आया. So this is again a very doable question and we can easily get through the A वाला option. तो hopefully आपको समझ में आ रहा है concept क्या है. This is the concept of algebra. These sort of questions you should practice and try to master. कि चलो इस तरह का pattern आएगा तो I can simplify it. Hopefully you have enjoyed this question on indices and surds and hopefully you were able to do it yourself. That is very very important. Or you can get the concept after watching the solution. That will also work. Not an issue. Try to learn, try to always keep a positive attitude, right? So it's all about learning and growing. Next question. Okay, so we are on to question number 3 of the algebra accelerator. So terms of GP are real and positive. Okay, this is a term, this is being given कि एक GP की बात हो रही है, उसका terms real है, positive है. If the pth term of progression is q, progression मतलब geometric progression, आप arithmetic progression मत मान लेना, जिस progression की बात हो रही है. So this question is based on GP and some logarithm. So this is based on sequence and logs का mix है ये question, है ना. दो concept इसमें mix हो रहे हैं. जहां दो कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं वो कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारा पर्टिकुलरली वहां पर इंटरेस्ट थोड़ा सा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है बिकॉज वहां पर कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग हो रही है तो सॉल्व करने में बहुत मजा आता है उस क्वेश्चन को, राइट. ठीक है. अच्छा, जीपी का अगर आपको nth टर्म निकालना है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ जीपी? अगर आपसे कोई बोले nth टर्म ऑफ जीपी कोई बता दो तो व्हाट यू विल से? a r की पावर n minus 1. दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर. सो pth टर्म आपको दे रखा है q. सो व्हाट आई कैन राइट, n की जगह p डाल दो. सो a r p minus 1 will be q. This much can be easily written, right?
एंड कीवर्ड टर्म इज पी, तो एन की जगह क्यू डाल दो, तो ए आर क्यू माइनस वन विल बी पी. सो दिस टू इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन हियर. सो इसका क्वेश्चन का अगर आप बोलोगे कि क्वेश्चन का जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है ना वो बहुत ईजी है इंटरप्रेट करना, बट सॉल्यूशन हो सकता है इतना ईजी ना हो, क्योंकि सॉल्यूशन में लॉग्स भी आ रहे हैं ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. बट हम घबराएंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, राइट. विल ट्राई टू डू इट एंड विल गेट द आंसर. आंसर आ जाएगा, राइट. नाउ व्हाट आई कैन डू इज देन द लॉगरिथम ऑफ द फर्स्ट टर्म. सो व्हाट यू हैव टू डू, लॉग ऑफ ए निकालना है. फर्स्ट टर्म ए होता है ना, ये आपको निकालना है, सॉल्व करके बताना है कि ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन. ठीक है भाई. तो हम क्या करेंगे, पहले इनको डिवाइड करके आर निकाल लेते हैं और फिर आर को यहाँ डाल के ए निकाल लेंगे और फिर लॉग ऑफ ए ले लेंगे ना. तो दिस शुड बी आवर आइडिया. सो इफ आई डिवाइड दीज टू, सपोज दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि इनको डिवाइड कर देते हैं यार. सो इफ आई डिवाइड 1/2, सो ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इज ए की पावर m माइनस n. यू शुड बी नोइंग दिस, है ना. पावर्स जैसे अगर कोई बोले 2 की पावर 9 डिवाइड बाय 2 की पावर लेट्स से 5, सो यू कैन सी क्लियरली से 2 की पावर 4. अब आप बोलोगे 4 कैसे, 9 माइनस 5 4. सो देर आर 9 2s एंड देर आर 5 2s, तो 5 2s विल गेट कैंसल्ड, ओनली 4 2s विल बी रिमेनिंग, है ना. दिस वेरी लॉजिकल, इजी है. सो अब इनको डिवाइड करोगे तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा. तो आप अगर सारे स्टेप्स लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो और नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा, राइट. ट्राई टू डू सम स्टेप्स मेंटली एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस विल बी क्यू अपॉन पी, राइट, एंड ए विल गेट कैंसिल्ड फॉर श्योर. सो दिस sort of setup I will get, and obviously इसमें से इसको माइनस करोगे, what I can do, p माइनस वन में से अगर आप q माइनस वन को माइनस करोगे ना तो p माइनस क्यू आ जाएगा, है ना. ठीक है. सो आई विल गेट r की पावर p माइनस क्यू एज q अपॉन p, राइट. सो दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल. होपफुली ऑल आर ऑन द सेम पेज, राइट. डन. अब r कैसे निकाले, है ना, तो ये बहुत फंसता जा रहा है क्वेश्चन. सो यू हैव टू नो सम कॉन्सेप्ट्स कि यार अगर कोई आपसे बोले, ध्यान से समझना, 2 की पावर 4 अगर कोई आपको 16 बोलता है और आपसे बोले 2 बताओ, so if you have to take the power on the other side you have to reciprocate it, है ना. so I can say 16 की पावर 1/4, है ना. ऐसे रेसिप्रोकल होके पावर इधर उधर जाती है. तो आपको इस p माइनस क्यू को अगर राइट में भेजना है तो उल्टा करके भेजना पड़ेगा. so I can say r will be q by p की पावर 1 upon p minus q. so now I got the value of r. सो नाउ वी हैव गॉट, अभी तो बस हमें पास कॉमन रेशियो आया है, अभी तो बहुत कुछ करना है अभी, है ना. नाउ व्हाट आई कैन डू, यार आर की वैल्यू तो आ गई, चलो इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने को मिल गए. इंडाइसिस के भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, लॉग अभी लगेगा, सीक्वेंस, जीपी तो लग ही रहा है. सो दिस ऑल अबाउट जीपी. ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो, राइट. ओके ठीक है. चलो अब क्या करें, अब इस आर को यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं यार, है ना, क्योंकि ए निकालना है ना भाई. अटैकिंग पॉइंट तो ए है और उसका लॉग लेना है फिर. सो आर को अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो व्हाट विल गेट, आर को अगर सब्सटीट्यूट करें, सो लेट्स ट्राई टू डू इट. सो दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्किंग, सो वी विल हैव टू वर्क फॉर इट, है ना. डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा इसमें, थोड़ा सा वर्किंग इन्वॉल्व है, तो हम कर रहे हैं. सो वी आर पुटिंग इन द एफर्ट्स हियर. ठीक है, ये वाला सॉर्टेड है. नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि आर को इधर डालते हैं. सो ए क्यूब बाय पी की पावर 1 माइनस पी माइनस क्यू एंड देयर इज अ होल पावर नाउ p माइनस 1 is equal to q. this much I can write. Right. Now obviously I will try to get a somehow. So अभी देखते हैं ये हम निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, राइट. और फिर हमें यहाँ पर लॉग भी लेना है ना. सो दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप आई गॉट. नाउ विल सी कि भाई बन रहा है नहीं बन रहा है ना. अच्छा, ए हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया. सो दिस इज p माइनस क्यू, राइट, एंड दिस ट्रांसफर्स एंड दिस वी हैव पुट हियर, राइट. ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू, कंबाइन दीज टू नाउ. सो व्हाट आई विल गेट, ए क्या आ जाएगा यार, ए आ जाएगा, लेट मी मल्टीप्लाई देम, राइट. इनको तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो आई विल गेट क्यूब बाय पी मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1 अपॉन p माइनस क्यू, राइट, एंड दिस विल बी q. सो आई कैन गेट a इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू ऑफ a आई विल गेट. सो एक तो अपने पास q आ जाएगा एंड ये उधर चला जाएगा, ठीक है. सो हाउ विल यू ट्रांसफर इट हियर, है ना, कैसे ट्रांसफर करोगे. सो आप एक काम ये कर सकते हो कि q की पावर, इस पावर को उधर कर सकते हो एंड p अपॉन q को ऐसे कर सकते हो, राइट. नीचे एक तरीका तो ये है, या फिर इस वाले टर्म को यू कैन टेक देयर, है ना. सो यू कैन डू एनी ऑफ द वे आउट, ठीक है. अपन एक काम करते हैं, राइट, है ना, ऐसे ना करके व्हाट शैल आई सजेस्ट कि इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ. सो व्हाट आई सजेस्ट इज अपन है ना पहले r को ही उधर ले जाते हैं, राइट. दैट वे विल फील अ बिट मोर कंफर्टेबल. सो राइट नाउ हम क्या करते हैं, इस आर पी माइनस 1 को नीचे ले आते हैं, राइट. ए सीधे लिखते हैं जिससे कि सब टर्म्स एक साइड में रहेंगे. दैट वुड बी अ मच बेटर अप्रोच आई वुड से, ना. सो ऐसे कर लेते हैं ना. अब आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा. अदरवाइज मैं उस अप्रोच से जाता तो मे बी सम ऑफ यू आर नॉट गुड इन
लाइक मैथ्स में गेट कंफ्यूज कि सर ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, राइट. सो दिस वे आई से कि ये वर्क थोड़ा बेटर करेगा, राइट. सो आई कैन से क्यू 1/r की पावर p माइनस 1, दिस आई कैन से, राइट. नाउ व्हाट विल बी 1/r. 1/r अगर आप निकालोगे तो इसको उल्टा कर दोगे, बिकॉज r तो ये है. सो r की जगह अगर आप ये डालोगे तो व्हाट यू विल गेट, है ना, q 1/r, राइट. इसका रेसिप्रोकल उल्टा करके p/q की पावर 1/p माइनस q, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, राइट. एंड दिस इज ऑब्वियसली p माइनस 1. सो इफेक्टिवली अब थोड़ा इजी हो गया अपने लिए. अब आप आई गेस सबको समझ में आ जाएगा, p minus 1 upon p minus q. So this is the value of a. Now we have to take log of this, है ना. So we'll try to take the log of this. So this is the value of a I got, है ना. अब इसमें फायदा क्या हुआ कि मैं पहले r को इधर ले आया and then obviously this is r की पावर p minus 1. Obviously you can take 1 upon r, 1 की तो कोई भी पावर चढ़ा लो, and 1 upon r मतलब आप इसको रेसिप्रोकल कर लो, राइट. So 1 upon r कैसे करोगे, 1 upon r will be 1 upon q by p की पावर 1 upon p minus q. एंड ऑब्वियसली इसको उल्टा करोगे तो दिस बिकम्स p बाई q की पावर 1 अपॉन p माइनस q. सो दिस यू कैन डू दैट, है ना, p की पावर 1 अपॉन p माइनस q अपॉन q की पावर 1 माइनस p. इस तरीके से मैंने लिख लिया. अब मैं बस इसका लॉग ले लेता हूँ. होपफुली इस तरीके से कम लोगों को कंफ्यूजन होगा. आप पहले मेथड से भी कर सकते थे, बट आई एम गोइंग फॉर अ बिल्कुल नॉन मैथ्स वाले बच्चे को समझ में आता है, दैट वे आई एम टेकिंग, राइट. सो यू कैन डू इन दैट मैनर, ठीक है, थोड़ा ईजी होगा आप सबके लिए. नाउ व्हाट वी कैन डू, अब लॉग लेना है. सो अभी 2 स्टेप्स हुए हैं इस क्वेश्चन के. नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ a हियर. सो आई नीड लॉग ऑफ q एंड मल्टीप्लाइड बाय p बाई q की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q. नाउ लॉग ऑफ m इंटू n, राइट, लॉग ऑफ m इंटू n. सो वी कैन राइट, ओके. सो व्हाट वी कैन डू इज, have I done everything correct? Is there any mistake that I have committed? Let me check it. Looks good, right? Looks good. So there's I haven't missed anything, right? Okay. So what we can use now? ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है. बेस हमें log का 10 मानना है, right? So I was checking is there any sim mistake? No. So what I can do is log q plus log of p by q power p minus 1 p minus q, this I will say. अब आप लोग सर ऐसा कैसे कर दिया, log m n will be log m plus log n. Let me write it here somewhere. So there are a lot of thing in this question, but okay, we are going through log m plus log n. So this property I have used. Now what I can do, कहीं power jump करके बाहर आ जाएगी. So what I can say, log of q plus p minus 1 upon p minus q log of p upon q, that will be log p minus log q. ठीक है. अब p minus q को हमें LCM लेना पड़ेगा, नीचे तो p minus q लग रहा है. So I'll get p minus q into log of q. Now you have to be very very careful. p into log of p. So this involves a lot of solving. I was looking कि मैंने कोई टर्म मिस तो नहीं करा है, नहीं करा है, because a मैंने यहीं से देखा है ना. So I am okay, it's good. Minus q log of q plus p log p plus p log of p, then minus p log q. It's very very typical, right? Minus log p, although it's an easy question, but obviously to solve it in 2 minutes is a bit difficult, right? Upon p minus q. So this is the concept that I'm getting. Now what I do, cancel क्या क्या हो रहा है, तो I could say p log q cancel हो गया, right? So p के साथ क्या आ रहा है, p के साथ ये दोनों आ रहा है, right? log p के साथ. So I will get log p, let me फर्स्ट log q को ले लेते हैं, राइट. ऑप्शन में पहले log q भी है, log p भी है, चलो log q को पहले ले लेते हैं. सो log q को अगर पहले लोगे, सो दिस इज log q एंड दिस इज log q. सो अगर इन दोनों में से log q कॉमन लोगे, log q को कॉमन लोगे तो 1 माइनस q आ जाएगा, राइट. log q को कॉमन लोगे तो 1 माइनस q आ जाएगा. सॉर्टेड, दिस टू आर गॉन. अब इसमें से आप माइनस log p कॉमन लो, है ना, माइनस log p कॉमन लो. यहाँ पर आप बोलोगे सर माइनस क्यों ले रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा. सो माइनस log p, अगर log p कॉमन लोगे तो p माइनस 1 आएगा, और log माइनस log p कॉमन लोगे तो 1 माइनस p आ जाएगा, राइट. एंड नीचे क्या लिखा हुआ है, p माइनस q. नाउ लुक फॉर द ऑप्शन. सो 1 माइनस q log q माइनस 1 माइनस p log p अपॉन p माइनस q. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. इट्स अ वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, है ना. सो इट इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. इट इज 2-3 मिनट्स का क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक भी साइन कहीं मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट.
अब इसमें ये क्वेश्चन लेने का रीजनिंग क्या थी कि ऑब्वियसली जीपी में कभी भी आपको ए या आर निकालना हो, जैसे आर निकालना पड़ता है कॉमन रेशियो जीपी का, सो अगर आपको दो टर्म्स के बारे में दे रखा है, यू टू डिवाइड, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कि डिवीजन करना है आपको, है ना, तो यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस। देन देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ पावर, यहाँ शिफ्ट करी पावर, दिस अनदर कॉन्सेप्ट कि पावर शिफ्ट करते तो रेसिप्रोकल करके जाता है, ओके। देन ऑब्वियसली एक बार आर आ गया तो ए भी आ जाएगा, ए आ गया, बट वी took a simpler method to get A rather than taking some terms there because उसमें सब लोगों को I don't know समझ में आता ही नहीं आता, so I would taken a very simpler route and then log of this. So log of something into something will be log A plus log B, right? Log of m into n will be log m plus log n and then ये power shift हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, log P upon Q is log P minus log Q, LCM लो, solve करो, common लो, option B is the answer. Typical question but a beautiful idea, great learning, right? Let's move ahead, right? आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब देखते हैं आगे वाले में कौन सी लर्निंग है। ओके, सो दिस क्वेश्चन लुक्स ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक कोई y इक्वल टू x स्क्वायर, दैट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑब्वियसली, एंड यू हैव अ मॉड्यूलस एज वेल, सो विल ट्राई टू लर्न दिस, है ना, ठीक है। सो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, सो दिस इन्वॉल्व सम ग्राफ्स एंड सम मॉड्यूलस एंड सम क्वाड्रेटिक, सब कुछ है इसमें, है ना, ठीक है, प्रॉपर अलजेब्रा का क्वेश्चन है ना, एंड सम क्वाड्रेटिक polynomial or expression, whatever you have to say, right? All these three concepts are here, right? ठीक है, इसको करते हैं ना, सॉल्व भी करना पड़ सकता है, हो सकता है। The length of the line segment joining two intersection points of the curves, दो curves आपको दे रखे हैं, आपको प्लॉट करना है, राइट? तो आप इसको कैसे प्लॉट करोगे? What is modulus of x? Now you should remember modulus of x का ग्राफ क्या बनता है? So modulus of x का ग्राफ आप सबको पता होना चाहिए, y is equal to modulus of x is something like this. All of you guys should be familiar with this. So you can draw a line like this and a drawing like this, है ना. So this I have drawn, but line बना लेता हूँ proper. So what I will get is this is y is equal to modulus of x, है ना. ये y is equal to x आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और यहाँ y is equal to minus x आ जाएगा. So this is I could say modulus of x. This is the graph of modulus of x, ठीक है. अब अगर आप this is y is equal to modulus of x, है ना. अगर आप y is equal to minus modulus of x बनाओगे, अगर आप y is equal to minus modulus x बनाओगे, तो कैसे बनाओगे? इसको इन्वर्ट कर दोगे, राइट? सो व्हाट विल बी दैट ग्राफ? उल्टा कर दो इसको, सेम ग्राफ को यू कैन जस्ट इन्वर्ट इट. सो आई विल गेट, इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये लाइन इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी. यू कैन जस्ट टेक द इमेज इन द x एक्सिस. दिस विल बी y is equal to minus modulus of x, राइट? सो वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना. पहले वाले कर्व को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, फिर सॉल्व करेंगे. सॉल्व तो बाद में देखेंगे, राइट? अभी तो पहले ग्राफ बनेंगे. सो दिस इज ऑब्वियसली द इमेज इन x एक्सिस. डन. नाउ यू हैव टू ऐड 4970. सो यू हैव टू टेक दिस ग्राफ अप बाय 4970 यूनिट्स. सो इट विल कम समवेयर हियर. दैट वुड हैपन. सो ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट? समवेयर लाइक दिस. यू कैन टेक इट 4970 यूनिट्स अप अबव. सो ये ग्राफ आप सीधे बना देते हैं. होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ विल डायरेक्टली ड्रॉ दिस ग्राफ, राइट? सीधे मैं ये वाला ग्राफ बना दूंगा. सो लेट मी जस्ट फॉरगेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो मैंने प्रोसेस सीख लिया. सो नाउ विल डायरेक्टली ड्रॉ दैट ग्राफ कि y इज इक्वल टू 4970 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x. नाउ लेट्स डायरेक्टली ड्रॉ दैट ग्राफ. सो ये बन जाएगा इस तरीके से कुछ. सो दिस इज माई ग्राफ. I hope it is clear to all of you. This point will be 4970, है ना. This much. The upside is, so इसके अगर coordinates निकालोगे तो क्या आएगा? 0,4970. So this graph is y is equal to 4970 minus modulus of x. So पहला वाला हमारा प्लॉट बन चुका है, पहला कर्व बन गया. अब दूसरा कर्व क्या बनाओगे? y is equal to x square. This is a straight away parabola. All of you must be familiar with this. ये तो नॉर्मल आपका पैराबोला ही बनेगा. So this is a normal parabola. y is equal to x square. अगर आप इनपुट 1 डालोगे तो आउटपुट भी 1 आ जाएगा, इनपुट 2 डालोगे तो आउटपुट 4 आ जाएगा. इट विल बी राइजिंग अबव पैराबोला. सो इस पैराबोला को प्लॉट कर लेते हैं. सो लेट मी ड्रॉ अ पैराबोला लाइक दिस, है ना. इस तरीके से बना लेते हैं. इस तरीके से ये पैराबोला यहाँ पर टच करके एंड इट विल गो समथिंग लाइक दिस, है ना, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज y is equal to x square. This shape is called parabola. All of you must be familiar with this shape. I hope so, right? I sincerely hope so. So obviously we have roughly plotted the two graphs. अब ये कह रहा है कि इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का लेंथ बताओ. सो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो है, किधर भी है, किधर भी है, राइट? सो व्हाट इफ आई कैलकुलेट. अब सिमेट्री तो है ही इसमें. दिस हैज सिमेट्री. ऑब्वियसली आपको दिख रही होगी सिमेट्री, है ना. ऐसा तो है नहीं कि राइट हैंड साइड में जो हो जाएगा उसके अलग डिस्टेंस आप लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओगे. बोथ आर सिमेट्रिक फंक्शंस.
So there's a proper symmetry. What if I get this distance somehow, so I can replicate it here, right? So मेरे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट अगर पता लग जाएगा तो बात बन जाएगा, है ना. अगर आप पॉजिटिव इनपुट डालोगे, है ना, x अगर पॉजिटिव है, सो इसकी ये वाली लाइन की इक्वेशन आएगी 4970 माइनस x, और इसकी क्या है कि इसमें x नेगेटिव है, सो 4970 माइनस ऑफ माइनस x, है ना. क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है यार, मॉड्यूलस ऑफ x अगर x पॉजिटिव है तो ऐसे ही खुल जाता है, और अगर x नेगेटिव है तो माइनस होके खुलता है ना. सो x अगर नेगेटिव है तो माइनस होके खुलता है. तो अगर x पॉजिटिव है तो ये ऐसे ही खोल दिया मैंने, देखो ये खोल दिया ऐसे ही, और अगर x नेगेटिव है तो माइनस होके खोल दिया. तो इसकी इक्वेशन तो ये आ गई इस लाइन की, और इसकी इक्वेशन x स्क्वायर है. सो वी कैन सॉल्व दीज टू. सो ट्राई टू गेट दिस पॉइंट. कैसे मिलेगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4970 माइनस x. आई एम ट्राइंग टू गेट दिस पॉइंट. इफ आई समहाउ गेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, सो जितना यहां चलना है ना उतना ही हम यहां चल के, और ये लाइन सेगमेंट का हमारा आंसर आ जाएगा, उसको डबल कर देंगे, राइट. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नाउ, इक्वेशन सॉरी. सो दिस इज 4970 इज इक्वल टू 0, है ना. अब हमें इसको स्प्लिट करना है और एक का गैप चाहिए. कैन यू सी दिस इज डिविजिबल बाय 7? दिख रहा है आपको? आई कैन से 7 इंटू 710. देखो जरा 4970 को अच्छे से देखो. सर ये कैसे पता चला 7 से जा रहा है? अरे 49 और 70 सीधे सीधे दिख रहा है. सो दिस इज ऑब्वियसली 7 इंटू 710. यू कैन टेक अ 0 हेयर. 70 इंटू 71, राइट. सो अच्छा ठीक है. सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 70x, आई वुड से, लेट मी करेक्ट इट. 70 को माइनस में ले लेंगे और 71 को प्लस ले लेंगे. सो माइनस 70x प्लस 71x माइनस 4970 इज इक्वल टू 0. नाउ आई कैन टेक x कॉमन हेयर. सो x माइनस 70 एंड 71 कॉमन हेयर. x minus 70 is equal to 0. So x minus 70 and x plus 71 is equal to 0. Obviously ये rejected है, क्योंकि हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए ना यार. ये तो x का तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव था जब भी तो ये आया था. सो ये तो होगा नहीं. x will be 70. दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है दिस इज 70. सो दिस विल ऑल्सो बी 70. आप अगर इसको इसके साथ सॉल्व करोगे, सो अगेन यू विल गेट x इज माइनस 70, है ना. तो दिस विल बी 70. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट माइनस 70 और इसका 70 होगा. सो इस लाइन सेगमेंट का अगर आपको लेंथ निकालना है, सो आंसर वुड बी 140 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज बेस्ड ऑन ग्राफ्स, है ना. तो आपको पैराबोला प्लॉट करना, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x 4970 यूनिट्स अबव, ये सब आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अलजेब्रा. होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. वी कैन मूव अहेड, राइट. लेट्स मूव अहेड, है ना. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट कि अगर हमें ये दोनों पॉइंट निकालने, इज देयर एनी अदर वे आउट? दिस इज योर टास्क. डू लेट मी नो इन द कमेंट करके मुझे बताना कि अगर मुझे दोनों पॉइंट एक साथ ही निकालने, इज देयर एनी वे आउट टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स डायरेक्टली? कोई तरीका है कि जिससे मेरे को सीधे पता लग जाए? दिस आई लीव अप टू यू, है ना. दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने. इज देयर अ बेटर मेथड, ऑप्टिमाइज मेथड, जिससे डायरेक्टली हमें पता लग जाए? वो भी मुझे बताना, राइट. सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल अप्रोच आई हैव टेकन, बट यू कैन ऑप्टिमाइज इट, है ना. तो वो मैं आपके ऊपर टास्क दे रहा हूँ, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन इनफाइनाइट जीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट. सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है. सो दिस टॉक्स अबाउट इनफाइनाइट जीपी. Now sum of infinite GP is 80. What is the sum of infinite GP? S infinity is A upon 1 minus R. First term upon 1 minus common ratio. This is given to us as 80. So ये GP में A is the first term, R is the common ratio. So A upon 1 minus R 80 दे रखा है, right? And the sum of its first two terms is 35. शुरू के दो terms का 35 है. So GP is A, then A into R, then A into R square and so on till infinity. इन दोनों का सम भी आपको 35 दे रखा है. यू कैन राइट कि यार इसने हमें दिया a प्लस ए इंटू आर इज 35, राइट. ये हमें दिया है ना, दोनों टर्म्स का सम 35 दे दिया. द वैल्यू ऑफ n फॉर विच सम ऑफ इज फर्स्ट n टर्म्स इज क्लोजेस्ट टू 100, है ना. ठीक है, n की कौन सी वैल्यू होगी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 100 आ जाए, राइट. 100 के आसपास आ जाए. दिस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है, अब इसमें घबराना नहीं है. दिस कैन बी डन एंड वी विल डू इट, है ना. वी विल श्योरली डू इट. सो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ ये कॉमन ले लो यार, शुरू हो जाओ सॉल्व करना आप तो, है ना. सो दिस आई विल राइट. अच्छा, ए अगर आप यहाँ से निकालोगे तो व्हाट यू विल गेट? 80 इंटू 1 माइनस आर. आई कैन सब्सटीट्यूट इट हियर. सो 80 इंटू 1 माइनस आर, 1 प्लस आर इज 35, करेक्ट. सो व्हाट आई विल गॉट? 80 a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 35. So 1 minus r square will be 35 by 80. This is obviously 7 by 60.
So r square will be 1 minus 7 by 16, that will be 9 by 16. So I got two values for r, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, या तो 3/4 का स्क्वायर है या फिर -3/4 का स्क्वायर है ना. So I got two values of r right now. So this looks well and good, अभी सही चल रहा है. अगर आप r को 3/4 डालो, if I take r is equal to 3/4, this is my case 1. I'm not sure कि ये होगा because there are two possibilities opening. So I have to think individually on both the possibilities. This is very important कि दोनों पॉसिबिलिटी जो खुल रही है उस पर आप दोनों पे सोचो ना, एक पे मत सोचना. कई लोग तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे ही नहीं, वो तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, राइट. सो इफ r is 3/4, I can put that 3/4 here or I can put it here. So what will be a? So a की वैल्यू क्या आएगी? 1 minus 3/4 is 1/4. 1/4 into 80, a will be 20, है ना. और केस 2 व्हाट आई कैन डू इज, r मेरा -3/4 भी हो सकता है. सो a की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी? 1 minus -3/4, 7/4. 7/4 into 80, 140. ट्राई टू डू दीज थिंग्स एज फास्ट एज पॉसिबल, राइट. ये तो मैं श्योर हूं कि ये आ गया ना. अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. इसने बोला सम ऑफ n टर्म्स शुड बी क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली 100, है ना. यार s इंफिनिटी तो 80 था. अगर आप सारी सीरीज को लोगे इन्फिनिटी तक, वो 80 आ रहा है, और सम ऑफ n टर्म्स 100 आ रहा है. इंप्लाइज देयर हैज टू बी, s इंफिनिटी तो 80 था ना, देयर हैज टू बी सम नेगेटिव टर्म्स. जब भी तो ऐसा होगा. अब आपको ये सोचना है ना, कुछ टर्म्स तो नेगेटिव होने ही पड़ेंगे यार. कुछ मतलब n टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स का सम 100 आ रहा है, इन्फिनिटी का 80 आ रहा है. ये कम कैसे हो रहा है? कुछ नेगेटिव टर्म्स आने पड़ेंगे, जब भी तो s इंफिनिटी कम आएगा. सो अगर नेगेटिव टर्म्स आना पड़ेगा तो ये तो नहीं हो सकता यार. इसमें तो सारे टर्म्स पॉजिटिव ही आएंगे, राइट. 20 से आप 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 करोगे, सो दिस इज रिजेक्टेड. इसमें तो सारे ही टर्म्स पॉजिटिव है ना, इसको रिजेक्ट कर दिया. लॉजिक लगाया है यहाँ पर, और ये वाला केस समझ में आ गया. इसमें ये कंडीशन बैठने वाली नहीं है. दिस इज अ की स्टेप है, राइट. इफ यू कैन नेल दिस स्टेप देन यू कैन जस्ट मूव हेड. एक तो यहाँ ध्यान रखना है कि टू वैल्यूज ऑफ कॉमन रेशियो. ये कैट में कई बार पूछा भी गया कि r अगर अभी देखा था ना अपने डिवाइड करा था, वैसे r निकालना पड़ता है एंड दो वैल्यूज लेनी पड़ती है. कैट में 2-3 बार इसका क्वेश्चन आया भी है इस तरीके का. Now I have a, I have r. Now I have to apply the sum of n terms of GP. क्या फॉर्मूला होता है? a 1 minus r की पावर n 1 minus r. तो इसको अप्लाई करके मुझे इसको 100 बनाना है और n देखना है ना. Let's go for this now. So a is 140. 1 minus 3/4 की पावर n 1 minus 3/4 should be 100. And I have to find such n. Okay. So this is 7/4. This 7/5, 1 plus 3/4, ये 7/4 है. So 4/7, 140 into 4/7 करोगे तो इतना आएगा यार, है ना, 80 आ जाएगा. So this is 80. So 80 is being written here, right? And 1 minus 3/4 की पावर n should be approximately 100. Now obviously we cannot solve it. Solve तो इसे नहीं कर सकते हम, but हमें क्योंकि approximation है ना, equal to तो है नहीं, exact है ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया. Now what we can think, अब कैसे सोचें इसको यार. तो देखो यार, आप ध्यान से देखना है ना, ये माइनस माइनस प्लस होना जरूरी है ना, क्योंकि अगर प्लस नहीं होगा तो फिर ये 80 इंटू 1 माइनस समथिंग पॉजिटिव, तो फिर ये 100 कैसे बनेगा, है ना. सो दिस हैज टू बी पॉजिटिव, यानी n आपका ऑड होना जरूरी है ना, n शुड बी ऑड. सो मैंने सोचा कि n ऑड होना चाहिए, बिकॉज n अगर इवन हो गया तो ये माइनस तो रहेगा नहीं, तो ये माइनस रह जाएगा, तो 80 इंटू 1 माइनस समथिंग विल बी लेस देन 80, राइट. सो n ऑड होना चाहिए, है ना. दिस इज अ वेरी की ऑब्जर्वेशन. ये सब आपको देखना आना चाहिए कि n ऑड डालेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो 80 से वैल्यू बढ़ेगी, हमें बढ़ानी है, 100 करनी है. सो n कैनॉट बी 4, n कैनॉट बी 6. ट्राई फॉर n इज इक्वल टू 5. लेट्स ट्राई फॉर n इज इक्वल टू 5, है ना. n इक्वल टू 5 डालते हैं सपोज. अगर नहीं होगा तो 7 से देखेंगे, है ना, फिर 7 वाला आंसर हो जाएगा. सो ये क्या मिला? ये 80 मिला. 80 माइनस 80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना. एंड 3 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5. 3 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5. नाउ सम ऑफ दिस बिकम्स 20. ओवरऑल अपना सम 100 आ जाएगा. अब देखना पड़ेगा. लेट्स ट्राई फॉर इट. सो दिस इज 243. 3 की पावर 5. दिस आई कैन सेपरेट 16 इंटू 64. सो 4 की पावर 5 को अगर 4 स्क्वायर लिखोगे ना तो 16 अलग कर लो, और 4 की पावर 3 64 अलग कर लो, राइट. ऐसा क्यों करें? बिकॉज इससे 5 टाइम्स कट जाएगा ना. दिस विल गो अवे. नाउ 240 अपॉन 60. 240 upon 60 is approximately 4, right? So this को अगर 4 बोलेंगे तो this becomes 5 into 4. This is approximately 20, and this was obviously 80, है ना. So 80 plus 20 will get approximately 100, है ना. तो approximation यहाँ पर है, वो तो क्वेश्चन बोल ही रहा है. So this comes out to be approximately 100. So 5 is the correct answer. So this is again a very very interesting question. बहुत ही interesting question है. So आंसर इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, that is 5.
आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन टू प्रैक्टिस ऑन सीक्वेंस. इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा. ये वाला कॉन्सेप्ट कि आर की हमेशा 2 वैल्यू आ जाती है जीपी में अगर स्क्वायर हो तो, है ना, ये भी ध्यान रखना है. कौन सा केस रिजेक्ट करना है, क्यों करना है, एंड देन सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, ऑल दीस आर द कोर कॉन्सेप्ट्स, है ना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन इक्वेशंस, यू कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल लो या हायर ऑर्डर इक्वेशंस बोल लो, है ना. तो इसने बोला a1 a2 a8 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो दिस इज द 8th डिग्री 8 की इक्वेशन है. इसकी डिग्री कितनी है, 8 है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर 8 है ना. सो इसके 8 रूट्स होने चाहिए और वो 8 रूट्स आपको बताए हैं. जितनी डिग्री होती है ना मैक्सिमम, वही रूट्स होते हैं ना. डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर. सो अगर मैक्सिमम पावर 8 है तो ये 8 रूट आपको दे रखे हैं, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है यार, समझ में आ गया. अभी बोल रहा है A1 की पावर 2025, A2 की पावर 2025, A8 की पावर 2025 बता दो. तो क्वेश्चन में तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, काफी लिमिटेड है, बट विल ट्राई टू गेज इट, है ना. अब ये चेन कहां पर आएगी आपको ये समझना है. ठीक है, आपको ये समझना है. तो ये कहां आएगी, दिस अ रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर, है ना. यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. दिस इज अ वेरी वेरी आई वुड से क्रूशियल रिजल्ट. आप जानते होगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना. आप सभी लोग ये जानते हो कि अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब इसमें लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी एंड 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. दिस विल गेट, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट. सो दिस इज अ पैटर्न. अगर आप x की पावर 4 माइनस 1 को फैक्टराइज करोगे तो व्हाट विल गेट, x माइनस 1, देन विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. दिस विल गेट. इस तरीके से ये वाली चेन कब आएगी, कहने से x की पावर 9 माइनस 1 में आएगी. ट्राई टू थिंक दिस. इफ आई टेक एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, सो ऑब्वियसली इसका एक फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट दिस चेन, x की पावर 8 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 एंड सो ऑन प्लस x प्लस 1. सो हैव टू गेट दिस कि यार ये आएगा कहाँ, इसको कैसे सेट करें. इसको सेट करने के लिए आपको ये जो लॉजिक है ना, ये आपको पता होना चाहिए इस तरीके से. इफ यू नो दिस पैटर्न, दिस लॉजिक कि एक्स क्यूब माइनस 1 को फैक्टराइज कैसे करते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 1, एक्स की पावर 5 माइनस 1, तो एक एक्स माइनस 1 अलग आ जाता है एंड देन द रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस कम्स, है ना. सो दिस यू ट्राई टू रिमेंबर दिस. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस, है ना. ठीक है यार, अगर ये समझ में आ गया. अब इसके रूट्स तो हमें पता है, a1 a2 एंड a8. इसका एक रूट ये भी होगा x इज इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर. सो अब हमें इसके 9 रूट्स हमें पता चल गए. 9 रूट्स कौन से हैं, एक तो ये रहा और बाकी 8 रहे. तो अगर ये सारे इसके भी रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे. सो आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर. सो a1 की पावर 9 माइनस 1 विल बी 0, क्योंकि ये इसका भी रूट है, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये 0 आ जाएगा. सो आई कैन टेक a1 की पावर 9 विल बी 1. सिमिलरली a2 की पावर 9 विल ऑल्सो बी 1, a3 की पावर 9 विल ऑल्सो बी 1 एंड a8 की पावर 9 विल ऑल्सो बी 1. दीज आर द 8 रूट्स फॉर दिस इक्वेशन एज वेल. ठीक है, इक्वेशन क्या है, इक्वल टू 0 भी है यार, है ना, ये भी लिख लो. x की पावर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये दोनों आ जाएंगे. इसके 8 रूट्स यू नो, एक रूट और आ गया 1. सो दीज आर द 9 रूट्स फॉर दिस इक्वेशन. दैट मीन्स ऑल ऑफ देम विल सेटिस्फाई दिस. सेटिस्फाई करा दो. सो 1 तो सीधे सीधे सेटिस्फाई कर ही रहा है, a1 भी करेगा, a2 भी करेगा, a3 भी करेगा, a8 भी करेगा. डन, राइट. सो वी गॉट दिस इन्फो. नाउ वी कैन जस्ट गो फॉर कि आप निकालना क्या है ना. सो ये कॉन्सेप्ट था. अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो देन यू कैन ऑब्वियसली गो अहेड एंड सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. अब हमें पावर 2025 दे रखी है, हमारे पास तो 9 ही पावर है. सो 2025 को वी कैन फैक्टराइज. दिस इज 9 इंटू 225. देखो 225 इंटू 9 लिखा है, कैसे पता चला, 225 इंटू 10 माइनस 1 करो. सो दिस विल बी 2250 माइनस 225. यही तो लिखा हुआ है 2025, राइट. सो इंस्टेड ऑफ 2025 आई कैन राइट a की पावर 9 होल पावर 225. सिमिलरली दूसरे वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर a2 पावर 9 होल पावर 225. इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू विल इवेंचुअली गेट 2025 होनी है ना, वही आने वाला है, कुछ हमने अलग नहीं करा है. Similarly, a8 की पावर 9 whole power 225. So this is the setup. Now obviously this is 1. So 1 की पावर anything is 1 only. So this will be 1. This will again be 1. This will. So how many ones you will get? 8 ones. So answer for this question will be 8. इसका आंसर आ जाएगा 8. I hope you enjoyed the beauty of this question. This is a great question. तो मैंने आपको एक टास्क भी दिया है, वो जरूर करके बताना मुझे. Obviously you can find in the video क्या टास्क दिया है, मुझे कमेंट में जरूर बताना. एक चीज ऑल्सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज to practice questions on arithmetic and algebra routinely, weekly practice करो. it is very very essential for CAT ना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप weekly कुछ even if you do 15-20 questions, good quality questions, that would help you.
कि चलो 20 क्वेश्चन आज इस हफ्ते में अरिथमेटिक के करने बढ़िया वाले. दैट वुड ऑब्वियसली एंगेज योर ब्रेन इन द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, एंड वो जो डुएबल क्वेश्चन से एग्जाम में आप उनको जरूर कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ विल गेट गुड परसेंटाइल, राइट. So today we discussed around 6 questions of algebra. You can see all the questions. So the first question was very beautiful idea. Visualize किया इसको, पैटर्न बनाया, टर्म्स कैंसिल करे. थोड़ा सा पोर्शन इसमें नंबर्स का भी है, कोपराइन वाला, उनका HCF 1 है, ऑब्वियसली इनका HCF 1 है, देयर इज नथिंग कॉमन हियर, एंड वी गॉट द आंसर. दूसरा क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू कंबाइन एंड सिंप्लीफाई इन सर्ट्स. वेरी ग्रेट. ऑब्वियसली एल्जेब्रा में आइडेंटिटी तो आएगी, तो आइडेंटिटी आ रही थी. थर्ड क्वेश्चन वॉज अ बिट टिपिकल. दिस इज अ प्रॉपर एल्जेब्रा का क्वेश्चन. इसमें काफी सारी चीजें भी मिक्स हो रही है, जीपी मिक्स हो रहा है, लॉग मिक्स हो रहा है, इंडाइसिस मिक्स हो रहा है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे. अच्छा क्वेश्चन था. फोर्थ क्वेश्चन वॉज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन. मैंने इसमें एक टास्क दिया. इज देयर एनी अदर वे टू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन? लेट मी नो, मुझे बताना कमेंट में. इस वीडियो का फीडबैक भी मुझे कमेंट में देना कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, किस क्वेश्चन को आप समझ पाए या कुछ नया सीखा हो, या कोई और बेटर मेथड आपको समझ में आ रहा हो, मुझे जरूर बताना ना. दैट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड. This was again a great question, good idea, very very good. And the last question was a relatively easy question, but you should know this concept, you know. So this is Sanchit. So signing off. Hopefully you are enjoying the series. Please feedback देना और अच्छे से तैयारी करो. So I want all of you to do well and get into great IIMs and great top colleges. So that's my wish for all of you guys. And see you soon on the channel in Algebra Accelerated 2 part. And bye bye. See you.